Hello friends, my name is Megha Agarwal and welcome to my channel Legal and Tax Experts। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 38 फॉर्म्स एमसीए के जो मेजर 38 फॉर्म्स हैं वो V2 पोर्टल से V3 सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ये बहुत मेजर चेंज है। एवरी बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल शुड नो अबाउट दिस कि AOC 4 to MGT 7 एंड ADT 1 to GNL 1 ये सारे फॉर्म्स जो है अब ये वेब बेस्ड फॉर्म हो जाएंगे V3 पोर्टल पे। हम सीधा पोर्टल पे जाकर इन फॉर्म्स को फिल करेंगे और अपलोड कर देंगे एंड वर्क इज डन। जैसे हम V2 के ऊपर पहले फॉर्म्स को डाउनलोड करते थे, PDF फॉर्म्स को, फिर उसके बाद फिल करते थे, ऑफलाइन एरर्स फेस करते थे, उसके बाद अपलोड करते थे, अब वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम सीधा V3 पोर्टल पे अपलोड सीधा वही फिल करेंगे, अपलोड करेंगे एंड इट्स डन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम अपना फोन अपग्रेड कर रहे हैं, कीपैड से अब हम टच स्क्रीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, स्मार्टर, स्लीकर एंड फास्टर, और बाकी ये वक्त बताएगा कि हम अपग्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी कि कैसे V3 पोर्टल हमें सपोर्ट करता है। नाउ व्हाट्स चेंजिंग फ्रॉम V2 टू V3? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि V2 पोर्टल के अंदर हम PDFs को डाउनलोड करते हैं, फिल करते हैं और फिर उसके बाद अपलोड करते हैं। V3 के अंदर हम डायरेक्ट फिल करेंगे और साथ में हम ऑफलाइन यूटिलिटीज भी यूज कर सकते हैं विद ऑटोफिल्ड एक्सेल। तो इससे होगा क्या? रियल टाइम वैलिडेशन, प्री फिल्ड डेटा, लेसर मैनुअल एंट्री, लेसर रिजेक्शन एंड मोर अकाउंटेबिलिटी। अब किसको अलर्ट होना पड़ेगा, किसको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले बिजनेसमैन, डायरेक्टर्स, CFOs, जो भी फाइनेंस हेड हैं, जितने भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो डू इट योरसेल्फ कंप्लायंस करते हैं, इन सबको अटेंटिव होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा इस ट्रांजिशन पे, बिकॉज दे हैव टू अडेप्ट देमसेल्फ क्विकली। Reason being, if they don't adapt themselves quickly, delayed filing would attract penalties, which would further attract troubles. So in order to avoid all these things, you just get yourself adapted as quick as possible. देखिए, अब आगे आने वाले टाइम में MCA बहुत ज्यादा डिजिटल हो रहा है, इंटीग्रेटेड हो रहा है, एंड यस, मोर वॉचफुल। Are we going to get more notices? This is what everyone is asking. Are businessmen going to get more notices after this digital shift? So the answer is yes, if they are careless, and no, if they stay compliant. MCA leaves less room for errors and missed deadlines. So you can't say anymore, मुझसे गलती हो गई sir. So MCA is going to catch every mismatch, every mistake and every missed deadline very fastly. But the good news is this would mean transparency, speed and fairness. So what forms are going live? So here are some hot favorites from 38 forms which is going live. These are AOC 4 financial statements, MGT 7 and MGT 7A annual return, ADT 1 auditor appointment, GNL 1 various applications, CSR 2 extract of auditors report, boards report and many more. Even linked forms are here. So if you are filing AOC 4, then you have to file few linked forms also, like AOC 1, AOC 2, CSR 2 and extracts depending on your company structure. Even on V3 portal, online and offline facility both is available, even on V3 system. How? In online, you know that you fill the entire form online, you click on upload and it's done. In offline, if you opt offline option, then you have to fill some basic data and you can download form, linked forms, offline utilities, auto-filled Excel sheets. Just download them, fill them, upload and boom, it's done. But remember, you can't mix the two. So if you are opting parent form as offline, then only linked offline forms are available.
but not vice versa. Like if you are opting online parent form, then linked offline forms are not available. So just keep this thing in mind that you don't mix it. So don't do this silly mistakes. Avoid these silly mistakes. जैसे कि आप गलत DSC ना यूज करें. जो आपका DSC है वो MCA के रिकॉर्ड से मैच करना चाहिए. आप सेम फाइनेंशियल ईयर का डुप्लीकेट AOC 4 मत अपलोड कीजिए. आप फॉर्म के थ्रू, एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स के थ्रू ईमेल आईडी को चेंज मत करिए, क्योंकि ये फैसिलिटी अब V3 पे अवेलेबल नहीं है. आप कोई भी राउंड ऑफ फिगर्स ना डालें, ये अलाउड नहीं है. आप ओनली रुपीज में फिगर डालें. AOC 4 या MGT 7 की AGM डेट में मिसमैच ना हो. जस्ट मेक श्योर जो भी AOC 4 और MGT 7 में आप AGM की डेट डाल रहे हैं वो सेम हो. एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि एक सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए चले. जैसे सपोज लास्ट 5 इयर्स की बैलेंस शीट फाइलिंग मिसिंग है, आप स्टार्टिंग 2 इयर्स की फाइलिंग कर देते हैं और उसके बाद करंट ईयर की फाइलिंग करते हैं. पीछे 2 साल की फाइलिंग अगर मिसिंग है तो जब आप करंट ईयर की फाइलिंग करेंगे तो प्रीवियस ईयर का डेटा वो पिक नहीं करेगा. तो अवॉइड करिए, सीक्वेंस में फाइलिंग करिए. उससे जब आप फाइलिंग करेंगे तो प्रीवियस ईयर का डेटा वो अपने आप ही पिक करेगा, जिससे आपका काम भी रिड्यूस होगा एंड बहुत कम चांसेस होते हैं एरर्स के. एंड कई बार सीक्वेंस में फाइलिंग नहीं करते तो सिस्टम भी बहुत सारे एरर्स थ्रो करता है. वो कई बार दिक्कत हो जाती है उसको हैंडल करना. देन यू हैव टू फाइल कंप्लेंट एंड ऑल दैट थिंग. तो जो भी काम करिए, इवन अगर आप कैपिटल भी रेज करिए तो भी आप सीक्वेंस में फाइलिंग करिए. जस्ट मेक श्योर यू डू दैट. So what are the benefits of MCA V3 portal? Business users get a personalized dashboards, see status of all forms in real time, all documents and past forms are searchable online, public search shows full filing history. तो अभी तक हम जब इंस्पेक्शन करते थे, जो फॉर्म्स हमने V3 पे अपलोड करे हैं वो हमें V3 पे जाके इंस्पेक्शन करनी पड़ती थी, और जो V2 पे अपलोड करे हैं वो V2 पे जाके इंस्पेक्शन करना पड़ता था. तो अब ये सारे फॉर्म्स जो है वो एक ही पोर्टल पे एक साथ अवेलेबल होंगे. सो यू नो द एंटायर फाइलिंग हिस्ट्री, ऑल फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन द V3 पोर्टल नाउ. सो बिग डेटा इज इक्वल टू, big data would mean smarter analytics, which would mean lesser fraud. So basically, if you are genuine, then MCA V3 is actually a good friend of yours, rather best friend of yours. So what you should do now? So here are 3 steps that you need to do. Number 1, upgrade your MCA ID to business user ID. Number 2, keep your digital signature valid, mapped and registered on MCA portal. And number 3, start preparing your financials and forms available on V3 portal right now. Don't wait, beat deadline and stay smart.